May I come in, sir? Please come, please come. Sit. Good morning, sir. Good morning. Can I take the seat, sir? Yes, sure. Are you comfortable? Yes, sir. Just introduce yourself, just telling me about in 3 lines. Just give me 3 lines about yourself. About my academics or anything? Whatever you want to tell me. I am from Patna. I have done my BTech in mechanical engineering, and I love playing chess. Okay. So, what is zeroth law of thermodynamics? Sir, zeroth law of thermodynamics explains that when two bodies A and B are in equilibrium with the third body C, then both bodies A and B are also in equilibrium. Why is this called zeroth law? Why not first law? Why not second law? I mean, there are no other, in no other theory there is zeroth law of something like Kepler's law, first, second, third. Why is there? Actually, sir, zeroth law was introduced after the first law was propounded, and because of which zeroth law, since it was after first law, then it was named as zeroth law. And so you have done your engineering from which college? Maulana Azad College of Engineering and Technology, Patna. Who was Maulana Azad? Maulana Azad was a freedom fighter and also the first education minister of independent India. Could you tell me few magazines, newspapers which you wrote? He wrote magazine Al Hilal, Al Balagh, and he wrote the book India Wins Freedom, and Tarjumanul Quran. These were some of his books and his magazines. How was Maulana Azad different from Muhammad Ali Jinnah in his ideology? Maulana Azad was propagating the idea for the Muslim to reside in India rather than a separate nation of Pakistan, which Muhammad Ali Jinnah was propagating. So in that way, his ideology was different. He was of the idea that Muslims have lived in India for a generation, and this is their homeland. They shouldn't demand for any other homeland. So in this respect, Maulana Azad ideology was different with that of Muhammad Ali Jinnah. But was Maulana Azad born in India? No, he was born in Makkah, Saudi Arabia. Okay. So, what are your post preferences? My first post preference is State Tax Assistant Commissioner, and then I put Bihar Education Service, and after that Labor Superintendent, and after that Enforcement Officer. What are the basic flaws in the education system prevailing right now in Bihar? The quality of education is the first. The education and the teacher and the faculty are not in line with the standard which we see in other states like Kerala and Karnataka, and in the other state where education and literacy level are high. And also if we look at the training and other module, these are also not in line with other states which are good in literacy rate. And also they are not in need with the modern education. Infrastructure is also lacking, but in recent times we have seen that there is a great amount of investment being done, like through BPSC TRE. There is a recruitment of a good amount of teacher, so that the level of education in lower and primary and middle school is getting upgraded. Since ancient India, yes, sir, where there was Nalanda with us, we have come a long way to the present state of affairs, right? So, what do you have to say? Why have we degraded so much? So, first reason could be because Bihar was in the line of Gangetic Plain, so it was always open to external threat and always in a war mode situation. So because of which there was destruction of universities like Nalanda, Vikramshila, all those universities. So and after that, no major university have come after that, because of which
the ancient legacy of education which was affiliated with Bihar was not identified, sir. Who is responsible for this? No major institute being coming in this state. Who is responsible? The people of the state? Yes, sir. People of the state is responsible, because you can't say that because if there is something lacking, it is the responsibility of people. No one else we can look after who can change. It is we, the people of Bihar, who have to change the situation. So rather than putting situation and other factors responsible for this, I think it is people of Bihar who have to work, and I think we are in that direction also to sir, I'm lacking words, sir. No issues. You like playing chess? Yes, sir. But I personally feel it is a time pass game. What do you have to say on this? No, sir. I don't agree with that thought. But I think chess has a very unique kind of aptitude which develops in you. Like your intellectual skill, your aptitude level goes up when you think of a strategy before your competitor thinks. So these all things help you in a real life situation as well. So in that way, chess is quite unique game. But what I can gaze from this, that you are not a team man, because you do not like team games. You like the solo games in which you have all the ability to decide. No, sir. I think I am, but since I have to mention only one game, I also like chess and other team game. Like I also like cricket and other game as well. But since I have to pick one game, so I have chosen chess. Yes. तो आप पटना में ही हैं काफ़ी दिन से? जी सर। आप मुझे 3 इम्पोर्टेंट इश्यूज बताइए पटना के जो रेलिवेंट हैं अभी के टाइम पे। सर पटना में पहले तो सर पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट अभी रिसेंट इसमें टॉप 10 एयर पोल्यूटेड सिटी में पटना है। तीसरा ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा, और तीसरा सर इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण का जो समस्या है सर रोड का, जिस वजह से सर साइज़ बहुत कम हो जाता है और ट्रैफिक उस वजह से बहुत ज़्यादा ये लगता है पटना में सर। अच्छा, पटना में एक और समस्या है ना, कोचिंग इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी ये हो गया है। यस सर। जो क्लास 12 के बाद जो नीट और IIT की तैयारी कराते हैं, चूँकि आपने मेरिट नेशन में काम किया है। जी सर। तो आपको सही पता होगा क्या चल रहा है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि कोचिंग इंडस्ट्री इज डिस्ट्रॉइंग द मेरिट, जो एक्चुअल मेरिट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है? कैन वी कॉल दैट एज कोचिंग माफिया? एब्सोल्युटली ऐसा कहना तो सर मतलब मुश्किल है, क्योंकि सर यही कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिजल्ट्स भी आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने सक्सेस का रोल कोचिंग इंडस्ट्री को, तो एब्सोल्युटली मेरिट और रिजल्ट के बीच में आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? मेरिट और रिजल्ट, कैन यू रिलेट बोथ, रिलेट और डिफरेंशिएट बोथ? यस सर। मेरिट और रिजल्ट के बीच में सर अमूमन ये देखा जाता है सर, जिनमें कुछ मेरिट होता है सर वही फिर आगे रिजल्ट लाते हैं, बट ये मतलब जनरलाइज करना मुश्किल है सर। यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। आपने पहले बोला, यस सर, मैंने क्या बोला, मेरिट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्या? देन यू आर सेइंग मेरिट से रिजल्ट आ रहा है। दैट मींस यू आर सेइंग कि कोचिंग मेरिट दे रहा है। मैं उल्टा बोल रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ क्या कोचिंग मेरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है? सर मतलब एग्जैक्टली ये कहना कि सर कोचिंग मेरिट को डिस्ट्रॉय करे ये गलत होगा सर, क्योंकि सर कई सारे स्टूडेंट सर अपने सक्सेस का रोल में कोचिंग को भी मानते हैं। और दूसरी बात सर, कोचिंग का जो माफिया का वो तब होता है सर जब आप कोचिंग करते हैं, स्टूडेंट्स का, टॉपर्स को खरीदते हैं, तो ये सारा मैल आपको नहीं लगता अभी ये सब हो रहा है? जी सर, हो रहा है सर। ये तो माफिया तो बोल सकते हैं, बट सर वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट का भला भी हो रहा है सर। बहुत सारे कोचिंग सर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट भी कर रहे हैं उनका। इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, जो अब बहुत लोगों का भला हो रहा है, इसमें कुछ गलत काम भी कर दो, तो इस प्रिंसिपल को कुछ बोलते हैं क्या? कुछ नाम है उसका? सॉरी सर, आपका ऑप्शनल क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सर। ओके, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि इलेक्टोरल फंडिंग में कुछ इशू चल रहा है अभी? जी सर, चल रहा है। क्या इशू है सर? इलेक्टोरल फंडिंग में सर इशू ये चल रहा है कि सर अभी इलेक्टोरल फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए मतलब बहुत सारा
मैकेनिज्म लाया जा रहा है जिसकी वजह से इलेक्टोरल फंडिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि पब्लिक को उनके जो पार्टीज़ और जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जा सके, इसलिए। बट इशू नहीं बताया आपने, एग्जैक्ट क्या इशू है? इशू सर बहुत ज़्यादा ओपेकनेस और मैल प्रैक्टिसेस उसमें इन्वॉल्व है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने सुना है? यस सर, इलेक्टोरल बॉन्ड। क्या वो इशू एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज है? जी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू है। क्या इशू है उसका? सर इशूज़ में ये है कि सर एक ही बैंक उसके लिए सर रिस्पॉन्स, जहाँ से आप सारा चीज़ सेल्स और परचेज इलेक्टोरल बॉन्ड का खरीद सकते हैं, अमूमन वो स्टेट बैंक का। और क्योंकि स्टेट बैंक को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये करता है, तो इसलिए सर वो इशू आ रहा है मतलब कि ये ट्रांसपेरेंसी को ब्रीच कर रहा है। क्या आप गवर्नमेंट डेटा को देख रही है, वो ट्रांसपेरेंसी का इशू है, या फिर जो हम फंडिंग दे रहे हैं पार्टीज को वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो इशू है? बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यस सर। आप पहली चीज को पकड़ रहे हैं। यस सर। तो क्या सेकंड चीज भी वैलिड है? सर दोनों चीज, सपोज टू पार्टीज आर देयर, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए इज गेटिंग 2500 करोड़ फंड, पार्टी बी को मिल रहा है 300 करोड़। तो जो 2500 करोड़ मिल रहा है वो चंदा कहाँ से आ रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है। Yes, तो क्या वो इशू है? यस सर, ये इशू कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको? सर प्रोसेस में जो लूप होल है जिसके ज़रिए सर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, पता चल पाए कि फंडिंग हो कहाँ से रही, कौन कौन डोनर हैं, कौन कौन फंड को के लिए सर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसका ज़्यादा जानकारी हो, पब्लिक डोमेन में आए, ताकि वो पता चल पाए कि कौन डोनर है, और उससे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा सर। ओके। चूँकि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हैं, सर, तो आप बता सकते हैं बिहार में भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड बदहाली की सिचुएशन है क्या? सर बदहाली की सिचुएशन तो कह नहीं सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारा अभी रिफॉर्म्स और बहुत बिहार का ग्रोथ रेट अगर देखें तो ये सर इंडिया में टॉप मोस्ट पे अभी चल रहा है सर। तो कितना है सर? एग्जैक्ट नहीं याद, अगर अलाउ करे तो सर आई कैन टेक अ गेस। हाँ श्योर। आई थिंक इट्स 10.9। ठीक है, अब आगे बढ़िए। बदहाली की सिचुएशन है क्या, या कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? सर क्योंकि पहले से एक इमेज बन चुका है कि बिहार इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, तो उस वजह से एक गलत परसेप्शन क्रिएट है। दूसरी चीज़ है कि माइग्रेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एक पब्लिक परसेप्शन बिहार को लेकर के खराब सा बना हुआ है। आप मिक्सअप कर रहे हैं, आप माइग्रेशन ला रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज ला रहे हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन पूछा। जी सर। व्हाई यू आर मिक्सिंग ऑल ऑफ दोस? आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए ना सर। वो एडमिनिस्ट्रेशन से ही ये सारा इशू लिंक जैसे है। हाउ दैट इज रिलेटेड? जैसे सर अगर एडमिनिस्ट्रेशन में अगर समस्या होगा तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अराइज होता है, जिस वजह से फिर सर बहुत सारे मतलब ब्लैकमेल और ये सारा चीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को अच्छा इमेज नहीं जाता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ है, और उस वजह से सर इन्वेस्टमेंट कम आता है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट का समस्या आता है, तो फिर माइग्रेशन उससे आता है। सर ये सारा चीज़ एक दूसरे से लिंकअप है सर। ओके। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो अभी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए बिहार में हुआ है क्या? जी सर, ज्ञान भवन गांधी मैदान में सर एक बिहार इन्वेस्टर मीट रखा गया था 13 दिसंबर और 14 दिसंबर को। उसका क्या आउटपुट निकला? उसका आउटपुट ये लगा कि बिहार गवर्नमेंट एस्टिमेट लगाया कि 50,000 करोड़ के आसपास हम इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, बिहार में ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका डेवलपमेंट अभी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे स्कोप है हमारे पास? 2023 बजट के अकॉर्डिंग सर ये बताया गया है कि सर इथेनॉल का बहुत ज़्यादा बिहार में स्कोप है, और उसके बाद सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बताया गया कि बहुत ज़्यादा बिहार में स्कोप है, और सर एक और सेक्टर के बारे में बिहार बजट में मेंशन है सर, वो मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए, बिहार के लिए सर्विसेज सेक्टर अच्छा है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है? सर आइडियली तो सर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, मगर सर बिहार में उस तरह का स्कोप अभी नहीं। मगर अभी क्योंकि ये जो अभी इन्वेस्टर समिट हुआ है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को बहुत एम्फेसिस दिया गया है सर। बिहार के लिए क्या सूटेबल है? दोनों ही है सर, किसी एक को हम चलिए ठीक है, ओके। कुछ सवाल? हाँ. Since there was a lot of discussion on education, do you feel this coaching industry, so much of with the coming of so many edtech companies, the role of schools can be managed? Do you feel so? I mean, even if the government does not employ good teachers over there, that can be managed. With coaching industry? And with the coming up of so many edtech companies.
Sir, coaching industry can't be substitute of the traditional school system, because the role of a school is not limited just to give you impart education. They help a student in moral building, ethical building. They learn how to interact with their peers, their colleagues. They know how to manage their emotion, which is not possible for a coaching industry to manage this wholesome activity. Okay. We'll call you back. Thank you, in sir. 2 minutes. Thanks, sir. Thank you, sir. Come, sit यार. 2-3 चीजें हैं जो मोटी मोटी हैं. एक तो जब आपने आया तो आपने खुद ही पूछ लिया मे आई सिट. वेट फॉर एटलीस्ट 5 seconds. Okay, sir. अगर नहीं बोलते हैं तब आप पूछ लीजिए मे आई सिट टाइप का. ठीक है. दूसरा है कि आप यू स्पीक टू फास्ट Yes, sir. एंड देर आर टू मेनी फिलर्स मतलब इस तरह के. तो इससे अगर आप स्पीड को कम कर देंगे ना तो ये फिलर्स भी आपके कम हो जाएंगे. ठीक है. बोलने की गति को थोड़ा कम कीजिए. आप बहुत जल्दी बोलते हैं. Yes, sir. ये है ना. और भी जगह आपको फीडबैक मिला होगा ऐसा ही. और सिटिंग पॉस्चर में ऐसा है कि देयर वाज नो हैंड मूवमेंट एट ऑल. बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हैंड मूवमेंट नहीं करना है, लेकिन हमारा कहना है कि हैंड मूवमेंट करिए. बहुत ज़्यादा नेता नहीं बनना है वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सटल हैंड मूवमेंट किया जा सकता है. अभी क्या हो रहा है कि अभी लग रहा है रोबोटिक है, हम बैठे हुए हैं, बोलते समय हाथ तो मूव करेगा ही ना. दैट इज नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग. तो लेट द नेचुरल वे ऑफ स्पीकिंग फ्लो. अगर हाथ मूव कर रहा है तो कीजिए. नेता नहीं बनना है, क्योंकि आप जॉब सीख कर रहे हैं. एक सटल हैंड मूवमेंट होना चाहिए, मेरी ये समझ. अच्छा सर. हड़बड़ी में क्यों थे? सर ये मतलब नेचुरल हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर ये मतलब एक लंबा सांस लेके बैठना है. ठीक है. आराम से बोलना, इत्मीनान से. जितना धीरे बोलेंगे उतना कम क्वेश्चन आएगा, जितना जल्दी बोलेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आएगा. हाँ. है ना? तो पहली बात Nice तो way of looking at it. पहली बात तो आप जब आए तो आप पूछिए मत, बैठूंगे. आप वेट कर लीजिए ना. हैव पेशेंस. लेट देम डिसाइड वेदर टू सेंड यू बैक और है कि नहीं. नो बोल देंगे तो जी सर. ऐसे कंडीशन में नो ही बोलेंगे फॉर श्योर. हाँ, अगर आप तो ठीक है. दूसरी बात, शर्ट का कलर बहुत गंदा है. सर ये तो मतलब अभी ये नहीं ठीक है, बट प्लीज चेंज. एकदम लाइट कलर पहनिए. ओके सर. ब्लेजर नॉट नेसेसरी, लेकिन प्लीज इंश्योर की. ठीक है सर. क्योंकि जैसे ही लुक आता है ना वैसे ही दिमाग खत्म है ना. उसके बाद डायरेक्ट नो भी आपने कई जगह बोला है. इंस्टेड ऑफ सेइंग डायरेक्टली नो, कोई एक क्वेश्चन था कि कोचिंग माफिया. सर मैंने ही पूछा था आपको कोचिंग माफिया है क्या, ऐसा कुछ. हाँ, आपने बोला नो. इंस्टेड ऑफ सेइंग नो कि आई बिलीव कि वो चीज़ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है ना. नो मतलब आप जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ आप बोले नो, जो पूछने वाला है उसको बड़ा एब्रप्ट फील होगा, मेरे बात को काट रहा है ना. इस टाइप से चीज़ हो जाता है. मतलब दैट इज अगेंस्ट द पोलाइटनेस बोलते हैं ना, वो चीज़ थोड़ा हम्बलनेस में कमी लगा. मतलब यू आर ट्राइंग टू डोमिनेट, आइदर वो स्पीड के कारण. ठीक है सर स्पीड तो बोलते हैं, बट ठीक है, बट थोड़ा पेशेंसली रहना है. और 2-3 चीज़ में आप कंफ्यूज होंगे. इफ़ यू हैव मेंशन्ड समथिंग, इफ यू आर सेइंग समथिंग, तो अगर आपका स्टैंड कुछ है तो स्टैंड पे मेंटेन रहना है. मेरिट में और रिजल्ट में कंफ्यूज हो गया. कोचिंग वाले में जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश की मैंने और आप हो गए. जी सर. हाँ. ठीक है. और सिमिलरली फिर वो इश्यूज था, क्या है बिहार का डिग्रेड हो रहा है क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज, उसमें भी आपने इंडस्ट्री माइग्रेशन क्या इश्यूज हैं, बदहाली की सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, तो आप बताएंगे कि प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में सही धरातल पे नहीं पहुंच रहा है, हम लोग फीडबैक नहीं ले रहे हैं, लीकेज बहुत ज़्यादा है ना, करप्शन के कुछ केसेज आ जाते हैं. तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं. अब वो इंडस्ट्री वाला चीज़ और माइग्रेशन वाला तो पॉलिसी इशूज़ है ना, वो पॉलिसी लेवल पे. बट अभी तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहेंगे ना, तो उसका जवाब अच्छे से दे दो. बाकी बहुत अच्छा है. ठीक है. मार्क्स हमने दिए हैं आपको, देख लीजिएगा. सर कोई क्वेश्चन? नहीं सर. और ठीक है, जा ठीक सकते हैं आप. ओके. थैंक यू. थैंक यू.